السلام علیکم جی، اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج منگل کا دن ہے۔ علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ یہاں پہنچ چکی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ پہنچ رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، ابھی یہ کارکنان ہے، حالانکہ 10,000 کارکنان کا کہا گیا تھا، لیکن ابھی جو ہے کارکنان یہاں نہیں پہنچے۔ یہ صورتحال ہے اور آج اگر آپ دیکھیں سورۃ یاسین جو ہے وہ یہاں پر پڑھی جا رہی ہے۔ یہاں آپ کو علیمہ خان نظر آئیں گی، اس کے علاوہ اور خواتین یہاں پر موجود ہیں اور علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ لوگوں میں سورہ یاسین جو ہے وہ تقسیم کر رہی ہیں، جو یہاں پہ پڑھی جائے گی۔ یہ اس ٹائم اڈیالہ کے باہر کی یہ صورتحال ہے، خواتین یہاں پر موجود ہیں اور یہاں آج علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں، لیکن ابھی جو باقی بہنیں ہیں وہ یہاں پر نظر نہیں آ رہی۔ یہ صورتحال اس ٹائم اڈیالہ کے باہر کی ہے۔ پیچھے آپ پنجاب پولیس کی جو ہے وہ نفری دیکھ سکتے ہیں، جو رستہ ہے مکمل طور پہ بند کیا گیا ہے۔ سورہ یاسین جو ہے وہ یہاں پہ پڑھی جا رہی ہے، نوجوان جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ یہ صورتحال اس ٹائم اڈیالہ کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں، جو رستے ہیں وہ مکمل طور پہ بند ہیں، رستے مکمل طور پہ بند کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یہاں کی یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے جی، علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ میڈیا والوں میں بھی جو سورہ یاسین ہے وہ تقسیم جو ہے وہ کر رہی ہیں۔ یہ اس ٹائم اڈیالہ جیل کے یہ باہر کی صورتحال ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ یاسین یہاں پر پڑھی جا رہی ہے، نوجوان جو ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور رستے جو ہیں وہ مکمل طور پہ بند ہیں۔ کتنی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ پہنچتے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے، لیکن اس ٹائم اڈیالہ کے باہر کی یہ صورتحال ہے۔ فیصل جوید صاحب بھی آج ایک کافی بڑی لمبے عرصے کے بعد یہاں پہنچے ہیں، لمبے عرصے کے بعد آج یہاں پہ نظر آئے ہیں، لیکن اس ٹائم جو کارکنان ہیں وہ پہنچ رہے ہیں اور آج کب تک دھرنا جاری رہتا ہے وہ آپ کو بتائیں گے، دکھائیں گے۔ لیکن اس ٹائم اگر آپ دیکھیں، کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ یہاں لوگ پہنچتے تھے، یہاں جو ہے وہ دھرنا دیا جاتا تھا، لیکن آج جو ہے وہ تمام لوگ جنہیں 26 نومبر کو گولیاں لگی، جو 26 نومبر کو شہید ہوئے، اس کے علاوہ اور جو باقی زخمی اور اس طرح کے لوگ ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ صحت یابی کی دعا ہوگی۔ جو جیلوں میں تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کی رہائی کی دعا ہوگی، اور جن لوگوں کی شہادت ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے بھی یہاں پہ آج دعا ہوگی۔ سو آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں جی، یہ صورتحال اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر کی یہ صورتحال ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ کارکنان نے آج پہنچنا ہے، لیکن کتنی تعداد میں پہنچتے ہیں یہ آپ کو دکھائیں گے، اور کیا صورتحال ہوتی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ آج ڈی جی ایس پی آر کی بھی پریس کانفرنس ہے، پریس کانفرنس کس چیز پہ ہے، کیا باتیں ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ لیکن اس ٹائم اگر آپ دیکھیں، اس ٹائم یہاں جو ہے وہ لوگ پہنچ رہے ہیں، یہاں آج کارکنان پہنچیں گے، وکلاء بھی پہنچ چکے ہیں پشاور سے، لیکن آج کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹویٹر پہ 10,000 لوگوں کی بات کی جا رہی تھی، لیکن یہاں اگر کاؤنٹ کیا جائے بمشکل سے 150 لوگ جو ہوں گے وہ آج یہاں پر موجود ہیں، جو ایک ریالٹی ہے۔ لیکن اس ٹائم کتنی تعداد میں آج لوگ پہنچتے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن ہمیشہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ یہاں جو لوگ آتے تھے، بیٹھتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ یہاں پہ سورہ یاسین جو ہے وہ پڑھی جا رہی ہے، اور آج شہداء کے لیے بھی دعا ہوگی۔ آج جو جیل اسیران ہیں، جیل میں جو لوگ ہیں، آج ان کی رہائی کی بھی دعا ہوگی، عمران خان کی رہائی کی بات ہوگی۔ یہ اس ٹائم آپ اڈیالہ کے باہر کا یہ منظر دیکھ سکتے ہیں۔ پیچھے آپ پنجاب پولیس کی نفری دیکھ سکتے ہیں، یہ اس ٹائم اڈیالہ کے باہر کا منظر ہے۔ جی دیکھیں، یہاں قرآن خوانی جاری تھی اور یہاں پنجاب پولیس کی جانب سے یہ گندا پانی چھوڑا جا رہا ہے، مطلب یہاں قرآن خوانی جاری تھی۔ اگر یہ دیکھیں، یہاں بیٹھ کے خواتین قرآن پاک پڑھ رہی تھی اور یہاں پنجاب پولیس کی جانب سے یہ گندا پانی چھوڑا جا رہا ہے، یہ حالات ہیں۔ اور یہاں علیمہ خان صاحبہ یہاں قرآن خوانی جاری تھی اور یہ گندا پانی یہ چھوڑا جا رہا ہے، کیا کہیں گی آپ اس سے سمجھ لیں، یہ قرآن سے ڈرتے ہیں، یہ یزید ہے، یزید قرآن سے، یزید جو ہے یہ اسی سے ڈر گئے ہیں۔ ہم پھر بھی پڑھیں گے، ہم کھڑے ہو کے پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں، کھڑے ہو کے پڑھ لیں گے۔
नहीं हुसैन आप ये दिखाएं ना छोड़ दिया है। बिल्कुल ये देखें जी, ये नीचे हम खड़े होके पढ़ रहे हैं, आप हर पीछे चले जाए, हम यहाँ खड़े होके पढ़े। देखें जी, यहाँ जो है वो कुरान हानि जारी थी और पंजाब पुलिस की जानब से यहाँ गंदा पानी जो है वो छोड़ दिया गया है। ये फस्तायत है, ये हालात हैं जी यहाँ पे। और ये देखें जी, ये एक यजीदियत की मिसाल है कि यहाँ कुरान हानि जारी थी, यहाँ में कोई ऐसी चीज नहीं की जा रही थी, लेकिन यहाँ जो है वो पंजाब पुलिस की जानब से गंदा पानी छोड़ा गया। ये हालात आपके सामने हैं जी, ये अडियाला जेल के बाहर हालात हैं। यहाँ जो है वो कुरान हानि की जा रही थी और यहाँ जो है वो गंदा पानी छोड़ा गया। इस तरह के हालात हैं यहाँ पे। यहाँ अडियाला जेल के बाहर आज के ये हालात हैं कि जहाँ कुरान हानि की जा रही थी और नहीं करेगा। देखें जी, ये हालात हैं यहाँ पे अडियाला के बाहर। जब बैठ के यासीन पढ़ी जा रही है, क्या कहेंगी? इतनी भी हया बाकी। फैसल जवेद साहब, यहाँ ये देखो, ये कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, इधर सूरह यासीन पढ़ी जा रही है और अल्लाह का नाम ले रहे हैं। और ये पानी यानी कि इससे ज्यादा क्या इस पे मतलब बात करते वक्त ज़हन नहीं मानता कि इस हद तक कि ये मतलब पानी छोड़ दिया। वो पूरा खास तौर पे जहाँ ये खवातीन अलीमा खान और बाकी लोग बैठे हुए थे, वहाँ तो आप देख सकते हैं वो सारे बेचारे फिर उठे हैं सारे यहाँ से। लेकिन यहीं पे तैयबा क्या कहेंगी आप? ये इधर तैयबा भी है। तैयबा क्या कहेंगी, ये जो हुआ यहाँ पे, जिस तरह गंदा पानी छोड़ा गया और यहाँ तो कुरान पाक की तिलावत की जा रही थी। ये हमारे हाथों में यासीन पकड़ी हुई और ये महमूदों में थी, ठीक है? और ये यहाँ पे इन्होंने पानी, ना तो ये वक्त था अभी इस वक्त किसी को भी उठाने का, खवातीन को उठाने का। अभी मुलाकात का वक्त 5 बजे तक है, इसके बावजूद यहाँ ये हो रहा है। मुझे बताएं कि ये क्या कर रहे हैं? अपनी आवाम को प्रोवोक किया जा रहा है कि आवाम आए और इन पे हाथ उठाए। तो अगर ये इस तरह की कोशिश में है तो ये ऐसी किसी कोशिश में ना रहे। ये तो हम जमाना जाहिलियत में सुनते थे कि कुफ्फार इस तरह करते थे, ये लोग तो मुसलमान भी नहीं रहे। पंजाब पुलिस आखिर किस चीज की नौकरी कर रही है? इस तरह की हराम तनख्वाहें खाने से तो बेहतर है ये अपने बच्चों को भूखा रखे, ये खुद भूखे रहे। इन लोगों को तो शर्म नहीं आ रही, इनको तो मुसलमान कहते हुए दुख हो रहा है। ये ना सिर्फ इन्होंने यहाँ इस दुनिया में जलील होना है, बल्कि आगे अल्लाह ताला के यहाँ भी जलील होना है इंशाल्लाह। ये कुरान का खातिर नहीं किया, देखें जी, यासीन का खातिर नहीं किया। देखें जी, ये हालात हैं कि यहाँ कुरान हानि की जा रही थी और पंजाब पुलिस की जानब से गंदा पानी जो है वो छोड़ दिया गया। और पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं, उस तरफ से गंदा पानी आया है। मैं आपको आगे होके दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर आप देखें, उस तरफ से जो है वो गंदा पानी जो है ये यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से जो है वो छोड़ा गया है। अलीमा खान साहब जो है जी, समाविया बड़ी गैरत आई है, यजीद ना हो तो शर्म कर लो तुम लोग, डूब मरो सारे बेकार। तो तुम्हें इसे यासीन की पड़ेगी इंशाल्लाह, ये याद रखना तुम लोग। जितने आज तुम इस यासीन मुनीर और इन सबके साथ खड़े हो ना, ये याद रखना, इस यजीदियत के खिलाफ इंशाल्लाह तुम लोग के घरों में घुसेंगे सारे, और तब तुम लोग अपनी 4 दीवारियों की कोई हिफाजत नहीं कर सकोगे। लानत है तुम लोगों पर, जो आज कुरान को तुम्हारे सामने यहाँ पर बेहुरमती की जा रही है, लेकिन तुम सारे मुंह बंद करके खड़े हो। लानत है तुम लोगों पर, लानत है कि नौकरी के खातिर कुरान की बेहुरमती याद रखना। देखिए जी, ये पीछे पंजाब पुलिस है और जिस तरह गंदा पानी छोड़ा गया वो आपको दिखाया। और ये हालात है इस टाइम यहाँ अडियाला जेल के बाहर के, यहाँ कुरान हानि की जा रही थी और यहाँ गंदा पानी छोड़ दिया गया पंजाब पुलिस की जानब से। और ये तमाम जो हालात हैं वो आपके सामने। देखें जी, ये हालात हैं आज अडियाला जेल के बाहर के। यहाँ जो खान साहब की बहनें हैं वो जहाँ कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, सूरह यासीन जो है वो पढ़ी जा रही थी, लेकिन अचानक से पंजाब पुलिस की जानब से पीछे से पानी छोड़ दिया गया। ये तमाम तर सूरत हाल, ये तमाम तर जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। क्या कहेंगी जी, सूरह यासीन आपके हाथ में है और यहाँ तिलावत की जा रही थी। देखें, इससे बड़ा जुल्म और बर्बरियत क्या होगी कि हम मुसलमान हैं,
मैं आसिम मुनीर साहब से एक सवाल करना चाहती हूँ कि आप हाफिज कुरान कहते हैं, आप जब किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो आप तकरीबात के अंदर पहले स्टार्ट लेते हैं कुरान पाक की आयात से, तलावत से। तो मेरे भाई आपसे कह रही हूँ, ये हम मुसलमान हैं, हम बैठी यहाँ निहत्ती, कुरान पाक हमारे हाथों में है। हम उन मुसलमानों के लिए जो शहीद हो चुके हैं उनके इसाले सवाब के लिए और मुल्क की बका के लिए हम यहाँ बैठे हैं, इसाले सवाब के लिए दुआएं मांगने के लिए पढ़ रही हैं। ये जुर्म है हमारा, ये कितना बड़ा जुल्म है हमारे साथ कि आप इस्लामी तालीमात ही भूल गए हैं। आप ये भूल गए हैं कि हम मुसलमान माएँ बहनें बेटियां हैं। आपने ये क्या किया है, ये आपको भुगतना पड़ेगा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, और इंशाअल्लाह इस कुरान का अजाब इन पे नाज़िल होगा, इस गवर्नमेंट पे भी और इस्टेब्लिशमेंट पे भी। याद रखिएगा, ये क्या करते जा रहे हैं। इनको इतना डर है इमरान खान का कि वो अल्लाह के अहकामात को भूल गए, कुरान को भूल गए हैं। ये क्यों? ये चोर है, ये यजीद है, ये काफिर है, ये बेईमान है, ये झूठे हैं। वो सच्चा जो लीडर हमारा अंदर बैठा है, पंजाब पुलिस की जानब से किया जा रहा है। मेरी बात आप क्या नहीं समझते, पंजाब पुलिस की इतनी जरूरत है तो ये गलत ऑर्डर क्यों फॉलो करती है? मतलब इंसान की अपना जमीर भी होता है ना। बात सुनिए, ये तो बेजमीरे लोग हैं। देखिए, रिस्क अल्लाह देता है। ये कहते हैं ना, हमारी रोजी रोटी मेरे अल्लाह के हाथ में है। इज्जत, जिल, मौत, जिंदगी सब मेरे परवरदिगार के हाथ में है। इनको चाहिए कि अभी खुदा की कसम ये सारे इस्तीफा दें कि ये गलत हुआ हमारी आंखों के सामने। ये क्या, ये मैं हैरान हूँ कि इनके ज़मीर सो गए हैं, इन्होंने अल्लाह को जान नहीं देनी। देखें, दुनिया में इंसान जो करता है ना बच्चों के लिए, लेकिन कब्र में आपका जो हिसाब है अकेले आपने वो करता है, अल्लाह को जवाब देना है। तो कम से कम इंसानियत, ये देखें, दीन तो सिखाता है कि हक और सच के लिए बोले। हम क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हम सब्र के साथ बैठे हैं और बैठे रहेंगे। ये जितना मर्जी डराए, हम डरने वालों में से नहीं। हम हक और सच के साथ हैं और उस वक्त तक खुदा की कसम में रोडों से नहीं हटेंगे जब तक ये हक और सच की जीत नहीं होती, इस तहरीक की आज़ादी नहीं होती, आज़ादी की तहरीक कामयाब नहीं होती और इमरान खान को रिहा नहीं करते। ये किस किस को रोकेंगे, किस किस को मारेंगे, किस किस को रोकेंगे? हर एक के दिल में, बच्चा ले, बूढ़ा ले, जवान ले, अल्लाह की कसम मेरे हाथ में कुरान है। हमारा खान बेगुनाह है, वो शख्स बेगुनाह है। आज अल्लाह ने हमारे दिलों में उसकी मोहब्बत डाली। कोई किसी के दिलों में डाल सकता है सिवाय अल्लाह के? कोई नहीं डाल सकता। ये हमारे दिलों से जितना मर्जी जुल्म कर लें, हमारे दिलों से इमरान खान की मोहब्बत कम नहीं कर सकते इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। क्या आज प्लानिंग है अस्सलाम वालेकुम अप्पा, मैडम? आज क्या मेरा फ्रेंड। क्या प्लानिंग है आज? आपने नहीं पढ़ा? मैडम मैंने पढ़ा है, आज कुरान पानी का ऐलान किया गया अडियाला जेल इसके के अलावा फिर वही सेम वाली सिचुएशन। आपको समझ आ गई? सूरह यासीन का खत्म है, सारे बैठ मैडम, इसका मकसद क्या है सूरत यासीन पढ़ने का? थोड़ा सा इस हवाले से बता दीजिएगा। मैं उम्रे पे था, अभी आया हूँ वापस। तो पाकिस्तान में रहते हो, पता नहीं है। मैडम, मैं सऊदी अरब लोगों के लिए दुआ करते हैं, बल्कि कुरान सारा वक्त पढ़ना चाहिए। और मेरे ख्याल में हर दफा जब हम बैठेंगे हमें जरूर एक कुरान खत्म करना चाहिए। लेकिन आज हम सूरह यासीन से शुरू कर रहे हैं, उसका खत्म करेंगे, सबके लिए दुआ करेंगे। जेल में जो है, जो अल्लाह की मदद होती है ना, उसके बगैर दुनिया में कोई चीज ना चल सकती है, ना हिल सकती है। तो मैं अल्लाह से दुआ मांगूंगी पाकिस्तान के लिए खैरियत करे, और जो जेलों में हैं उनके लिए दुआ मांगेंगे, जो शहीद हुए हैं उनके लिए दुआ मांगेंगे। जो वो अपनी किसी चोरी डाके के लिए नहीं शहीद हुए, वो पाकिस्तान के लिए शहीद हुए, वो पाकिस्तान के नजरिए के लिए शहीद हुए। तो ये शहादत बड़ी एक ऊंचा दर्जा रखती है जब आप एक मकसद के लिए अपनी जान दे दें। ये वो नहीं है कि आप डकैती करते हुए भागे जा रहे थे और किसी ने आपको मारा। आपको स्नाइपर राइफल से छतों पे से दहशतगर्दों ने मारा है। दहशतगर्द ऊपर चढ़ के उन्होंने बेगुनाह लोगों को नीचे मारा है, और हम उसके गवाह हैं और हम आई विटनेस हैं, ऐने शाहिदीन हैं, क्योंकि हमने ये देखा होते 26 नवंबर को। फिर 9 मई को कई लोगों के अंदर एक, जैसे आज हम सड़क पे खड़े हैं, आप देख रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से गोलियां चलें और आप में से एक को गोली सर में लगे और आप शहीद होके गिर जाएं, तो वो आप क्या दहशतगर्दी कर रहे थे? क्या आप कौन सा कानून तोड़ रहे थे? कुछ भी नहीं। आपका आइन कहता है कि आप पुरअमन एहतजाज करें, तो आपके ऊपर ना किसी को वारदात करनी चाहिए, ना किसी को गोली चलानी चाहिए, क्योंकि आप पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। तो 9 मई को क्या, और उसके बाद 4-5 अक्टूबर हो गया, उसके बाद मुरीद के हुआ है, मतलब 26 नवंबर के बाद मुरीद के हुआ है। वो कौन लोग थे? आप उनके ऊपर गोलियां चला रहे हैं जो असल में इस मुल्क में जुल्म कर रहे हैं।
अब सड़क पे मैंने सुना है कि यहाँ करीब ही एक बंदे जमीन नहीं बेच रहा था, उसको गोली मार दी गई। हाँ, आपने उसकी कवरेज की किसी ने? वो कह रहा है मैंने जमीन अपनी नहीं बेचनी, तो उसको गोली मार दी। हाँ, किसी ने उसकी कवरेज की? किसको जमीन बेच रहा था मैम? किसको यहाँ मना किया देख रहे हैं जो हाउसिंग सोसाइटी वाले, ये वहाँ जाके पूछेंगे, पुलिस वाले भी आपको बता देंगे। उन्होंने जमीन नहीं, जब सैज है उसने नहीं इनकार किया। शहीद तो वो भी है क्योंकि बेगुनाह उसको मारा गया है, लेकिन जिन्होंने मारा है, जिन्होंने जुर्म किया है, वो तो आपके ऊंची ऊंची पोस्ट के ऊपर रहते हैं। तो इसलिए ये निज़ाम उल्टा हुआ है। हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह से, अल्लाह की मदद सबसे, उसकी मदद के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम दुआ मांगेंगे सबके लिए। मुलाकात का कोई इम्कान है? हमें पता नहीं, जब बताएंगे। मैडम आज मैडम ये बताइएगा कि माशाल्लाह आप हमशीरा हैं खान साहब की, कोई पार्टी ओहदा भी आपके पास नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पार्लियामेंटेरियन अपने आप को क्यों जवाब दे समझते हैं आप? कौन है? मुझे तो कोई जवाब नहीं, हम तो अपने आप को लेकर आते हैं। और ऐसा हमने कहा था कि यहाँ 10,000 लोग आने चाहिए। जो सारी पाकिस्तान की पार्टी है, पाकिस्तान इमरान खान के जो पार्टी है, वो 8 फरवरी के वोटर्स हैं, और वो वोटर्स जो हैं वो दुआएं करते हैं सारा दिन। हमें पता है, मक्का मदीना जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं, इमरान खान के लिए दुआएं करते हैं। ये तो इमरान खान की खुशकिस्मती है कि उनकी जो हिफाजत है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत इसलिए कर रहे हैं, लोगों की दुआएं साथ हैं इमरान खान के। मैडम और ये चीज जो है, ये चीज हमेशा याद रखें कि आप जितनी मर्जी आपको कोई सवाल, मोबाइल थोड़ा पीछे करें। सबसे कीमती चीज क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए आपको हमेशा बात करनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए। मैडम 20 साल हो गए, 20 साल हो गए पीटीआई की बीट करते हुए, मेरी बात सुन, मैंने आप इल्जाम लगा रही है ना मैडम, आप इल्जाम लगा रही है ना कि हमें कोई सवाल देता है। ये इस वक्त आप देख सकते हैं जी, तो रीमा खान साहिबा इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद है और मुल्क बचाना है, कुर्बानी भी देंगे इंशाल्लाह, हमारे साथ कुर्बानी देंगे। दिल है हमारा, मुल्क की दिफा है। इमरान खान छोड़ेंगे, मुल्क इंशाल्लाह सीधा हो जाएगा। इमरान खान जेल में डालने के मुल्क छोड़ जाएगा, इसमें शक नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान रियासत से, चखान रिहा करो, बस करो जुल्म, बस करो तशद्दुद। अवाम तंग है, अवाम क्या कहता है? हमारा फ्रूट सारा खत्म है, हमारा मदनियात सारा खत्म है, ब्लैक है। हम क्या कहता है? हम किससे गिला करता है? ये लोग अमेरिका का एजेंट है। मैं अमेरिका नहीं मानता है, मैं मुसलमान है। तो कोई मुसलमान है वो खड़ा हो जाओ, मुसलमान के साथ, के साथ इंशाल्लाह। मैं हर किस्म कुर्बानी के लिए तैयार है माँ। मैं सलूट करता आपके लिए, मैं जान देंगे आपके लिए। आज हम सूरह यासीन का खत्म करेंगे। यासीन खत्म करेगा। हमारा साथ हर वक्त ये है, यासीन शरीफ हमारा जेब में है, दिल में है हमारा। मैं आपके साथ इंशाल्लाह दुआ करें। दुआ मैं मस्जिद में करना है, मैं दीन करना है, मैं 5 वक्त मांग करता है, मैं दुआ करता है खान चले इंशाल्लाह। सुनो बस, आप 2 बात करते हैं, सही आपा एक साइड चले रीमा खान साहिबा पहुंची हैं अडियाला जेल के बाहर। करें जी, तो आप देख सकते हैं इस वक्त रीमा खान साहिबा सारी रुकावटें हटाकर यहाँ अडियाला जेल के बाहर पहुंची हैं। और आज इम्पोर्टेंट दिन इस वजह से भी है कि 2 बजे ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और कहा जा रहा है कि बड़े अहम इशू पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। दूसरी जानिब रीमा खान साहिबा यहाँ पर पहुंची हैं अडियाला जेल के बाहर
اور دیکھتے ہیں کہ آج ان کو ملاقات کی اجازت ملتی ہے یا نہیں. جو تاثرات ہیں اور جو اثرات یہاں پر نظر آ رہے ہیں وہ لگتا نہیں ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات کی اجازت ملے گی. کارکنان کی بڑی تعداد یہاں پر اس وقت پہنچ چکی ہے اور راستے بالکل بلاک ہیں, کسی کو بھی آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جو ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں اور جو قیادت ہے پنجاب کی, وہ ابھی تک بڑی تعداد میں یہاں پر نہیں پہنچ سکی. کارکنان اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں, لیکن جو قائدین ہیں وہ ابھی تک یہاں پر نہیں پہنچے. جو ان کا مستقبل ہے جس کے لیے بالکل چلے اب سارے مرد اندر بیٹھ کے تاکہ ہم سورہ یاسین بیٹھیں گے تو پڑھیں گے. بس بیٹھ جائیں سارے, بیٹھو نا, سنو آپ ہو گے. ایم این اے ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ساجد خان مومند, وہ یہاں پہ پہنچے ہیں اور آپ ان سارے کے بیٹھو کیونکہ سورہ یاسین پڑھنے کا وقت ہے. بہت سارے ادھر آتے ہیں. ہم جانتے ہیں